Good morning, class. Now we shall continue with the remaining questions of exercise. Here, question number 8. The question says that the equation of the line PQ is 3y minus 3x plus 7 equal to 0. You have to write down the slope of the line PQ and calculate the angle that the line PQ makes with the positive direction of x-axis. Okay. So first of all, what is given? Equation of a line is given 3y minus 3x plus 7. What do you know? Equation of a line is like this: y equal to mx plus c. This is called slope intercept form. Okay, when slope is given to you and intercept, so equation of a line. So what you have to do, you have to change this equation in this form. Okay, so write this equation in this form. So what will happen? 3y equal to 3x plus 7. Okay, and this will be equal to 3x is equal to 3x minus 7. Okay, minus 7. Now you should have only y. So what you are doing? Dividing throughout by 3. So this will give you y equal to 3 by 3 into x minus 7 by 3, or y equal to x minus 7 by 3. So y equal to mx plus c, y equal to x minus 7 by 3. So compare these two. So from these two equations, m, what is m? M is equal to 1. So slope is equal to 1. What you have to find out? Slope. तो पहले क्या बोला? Find the slope. तो slope is m equal to 1. Now you have to find the angle. So you have to find theta. So slope is equal to 1. That is tan theta is equal to 1. So when is theta equal to 1? When is tan theta 1? When theta equal to 45. Okay. So theta equal to 45. This is your answer for this question. Question number 9. Y is equal to x plus 1. Y is equal to root 3 x minus 1. There are two lines are given to you. So in the figure it is given that y equal to x plus 1 is like this and this is like this. Okay. You have to find out this angle theta. अब देखो, this line y equal to x plus 1. तो ये उसका थीटा होगा. ठीक है. इस लाइन का थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये है. ओके. एंड रूट 3x माइनस इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये है. ठीक है. इस एंगल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये है और ये वाला स्ट्रेट लाइन इस लाइन का इंक्लिनेशन ये है और इस लाइन का इंक्लिनेशन ये वाला पार्ट है. राइट. नाउ इसका हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का इंक्लिनेशन क्या होगा. फ्रॉम हियर y इक्वल टू एक्स प्लस 1. तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 कंपेयर विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? m इज़ इक्वल टू 1. देखो यहाँ 1x है तो m इज़ इक्वल टू 1. सो m इक्वल टू 1. दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है. m क्या है? tan थीटा. तो tan थीटा इक्वल टू 1 और थीटा 1 कब होता है? tan कब होता है? थीटा 1 में थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. सो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. नाउ कंपेयर द फ्रॉम हियर m इक्वल टू रूट 3. ओके. m यहाँ से कंपेयर करोगे तो m विल बी इक्वल टू रूट 3. tan थीटा इक्वल टू रूट 3 और tan 60 इज इक्वल टू रूट 3. सो थीटा विल बी इक्वल टू 63. ओके. सो हमें ये पता है कि ये वाला ये है 60 डिग्री क्योंकि इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है. इस एंगल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है. ठीक है. अब ये एक ट्रायंगल है. ठीक है. ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर. तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. तो 60 डिग्री. ओके. 60 इज इक्वल टू थीटा प्लस 45. Are you able to understand? And therefore theta will be equal to 60 minus 45, which is equal to 15 degree. Okay. I hope you have understood this question. Now find the value of p given that y by 2 equal to x minus p passes through the point minus 4, 4. तो क्या बोला है कि ये जो लाइन है मतलब दिस लाइन passes through the point minus 4, 4. इसका मतलब क्या है? अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये हमारा x है, यहाँ y है. सो व्हाट यू विल डू इन द प्लेस ऑफ x यू विल सब्स्टिट्यूट -4. इन द प्लेस ऑफ y यू विल सब्स्टिट्यूट 4. सो सिंस इट पासेस थ्रू -4, 4 दिस विल बी इक्वल टू 4/2 इक्वल टू -4 minus p एंड फ्रॉम हियर 4/2 इज 2 -4 minus p और p इज इक्वल टू -6. ओके.
Next, moving on to the next question, question number 12. The graph of the equation y equal to mx plus c passes through 1, 4 and -2, -5. Determine the values of m and c. Okay, so equation of the straight line क्या है? y equal to mx plus c. It is given that it passes through 1, 4 and -2, -5. तो अगर ये passes करता है 1, 4 में, तो हम क्या करेंगे? x के बदले what you will do in the place of x put 1, in the place of y 4. तो क्या हो जाएगा? substitute 4 is equal to m into 1 plus c, or 4 is equal to m plus c. So this will give you first equation. Next is it also passes through -2 and -5. So here -5 will be y and -2 will be x. So -5 equal to -2m plus c. Okay, so this will give you -5 is equal to -2m plus c. फर्स्ट इक्वेशन है 4 इक्वल टू m प्लस c. हम इसका साइन चेंज कर रहे हैं. सो यू विल गेट -9 इक्वल टू -3m और m इज इक्वल टू 3. Substitute the value of m equal to 3 in the first equation. m plus c equal to 4. So 3 plus c equal to 4 और c is equal to 4 minus 3 which is equal to 1. ठीक है, यहाँ से हमें m और c की वैल्यू आ गई है. ओके, next question is find the equation of the line passing through the point 2, -5 and making intercept of -3 on y-axis. ठीक है, तो पहले तो हमें जब हमको एक हमने किया था पॉइंट स्लोप, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो यहाँ था y इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है, और दूसरा होगा हमारे पास क्या बोलते हैं पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट. सो हियर m विल बी इक्वल टू, अगर हमें पॉइंट्स नहीं दिए हैं, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा हमारे पास? इक्वेशन ऑफ अ लाइन ओके, सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है? एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c, और दूसरा होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. ठीक है, अगर हमें पास थीटा नहीं दिया गया हो, ओके, इफ़ थीटा इज़ नॉट गिवन, हमें कुछ नहीं दिया है, हमें पॉइंट्स दिए हैं. ठीक है, तो हम m कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है? अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म में करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. ओके, सो हियर अब देखो इस क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. इट इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -5. ये एक पॉइंट है. ठीक है, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन y एक्सिस. तो इस तरीके से एक लाइन बनेगा. ठीक है, तो y इंटरसेप्ट में, ठीक है, y में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? एट -3. तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, -3. ठीक है, 0, -3. और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? 2, -5. ओके, द लाइन पासिस थ्रू 2, -5 और एंड 0, -3 है कि नहीं? बोल रहे हैं कि ये इंटरसेप्ट कर रहा है यहाँ पे -3 ऑन y एक्सिस. तो ऑन y एक्सिस तो क्या बोलते हैं इसको? x तो 0 होगा, तो 0, -3. ओके, नाउ इसका स्लोप क्या हो जाएगा? x1 y1 x2 y2. तो स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. y2 इज -3 माइनस ऑफ -5 दैट इज +5 डिवाइडेड बाय x2 इज 0, 0 माइनस 2 दैट इज 2 बाय -2 विच इज इक्वल टू -1. सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. तो ये हो जाएगा हमारे पास y -5 इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 2 और y प्लस 5 इज इक्वल टू -x प्लस 2. यहाँ पे क्या है? 2, -5. तो ये हमारा x1, ये हमारा y1. तो ये फॉर्मूला है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y माइनस प्लस 5, 1 हमारा स्लोप है x माइनस x1. यू कैन ऑल्सो, ये भी मेथड है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें इंटरसेप्ट भी दिया है. इंटरसेप्ट दिया -3 और स्लोप हमने निकाला -1. तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन एक तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है,
दैट मीन्स y इज इक्वल टू m क्या है -1 इंटू एक्स, इंटरसेप्ट क्या है -3, c क्या होता है इंटरसेप्ट, यहाँ पे इंटरसेप्ट दिया है तो हम लिख दिया -3. सो दिस विल बी इक्वल टू y प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0. अगर ये सारी इस साइड में आ जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा. तो इस मेथड में भी हम कर सकते हैं, तभी आंसर आ जाएगा. इस मेथड में भी कर सकते हैं. इट्स बेटर टू यूज़ दिस मेथड, इक्वेशन ऑफ बाय पॉइंट स्लोप. क्यों हमने स्लोप निकाल दिया, ठीक है. स्लोप निकाल के हमने स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Equation of a straight line whose inclination is 60 degree and which passes through the point 0, -3. तो हमें यहाँ पे स्लोप दे दिया है, ठीक है. स्लोप ने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दिया है और हमें बताया कि इट पासिस थ्रू 0, -3. यहाँ पे उन्होंने हमें क्या नहीं दिया है, इट्स नॉट गिवन, इंटरसेप्ट नहीं दिया है, ठीक है. वी कैन इवन इंटरसेप्ट मेथड से भी हम कर सकते हैं, नो इश्यूज इन दिस. तो स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan 60 विच इज इक्वल टू √3. इट पासिस थ्रू 0, -3. तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. तो माइनस, तो यहाँ पे y प्लस 3 इक्वल टू √3 इंटू x माइनस 0, ठीक है. ये x1 y1. फ्रॉम हियर यू विल गेट √3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0. अगर मैं इसको दूसरे मेथड से भी करूँ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है. स्लोप क्या है, tan 60, क्योंकि 60 डिग्री एंगल दिया है तो m इक्वल टू tan 60 विच इज़ इक्वल टू √3. तो y इक्वल टू √3 इंटू एक्स, ठीक है. और 0, -3 का मतलब क्या है, x 0 है तो ये y इंटरसेप्ट क्या है, 3 है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3. सो दिस इज सेम है. तो √3x माइनस y माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0. तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस मेथड. इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे इंटरसेप्ट दिया है, अगर यहाँ पे पॉइंट दिया होता 2, -3 होता, तब हम इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है. यहाँ पे आ जाएगा y माइनस x1 y1, इस तरीके से. अगर 2, -3 आया तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे. सिंस 0, -3 है तो इसका मतलब क्या है, 0, -3 मतलब इट इज़ y इंटरसेप्ट, बिकॉज x 0 है तो दिस इज़ y इंटरसेप्ट. तो c इज़ इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे हम इंटरसेप्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं. इफ़ नॉट, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो यू कैन राइट विद दिस मेथड, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस. ओके. क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड द ग्रेडियंट. इसका स्लोप निकालना है. स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. तो ये हमारा x1 y1 x2 y2. So you can write it as y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So 4 minus into minus is plus 2 divided by x2 minus x1. 3 minus 0, 6 by 3, which is equal to 2. So this is your slope. Okay. Please, now you all of you complete till question number 16. There are subparts of these questions. So complete these questions. I hope you have understood all these questions. Okay. Thank you.